یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، گزشتہ چند جمعوں سے ہمارا نماز کا موضوع جاری و ساری ہے. امید ہے انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم اپنے موضوع کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. سابقہ جمعہ پر آپ کے سامنے جو بات پیش کی گئی تھی، رکوع اور سجدہ اور اس کے متعلق چند باتیں. رکوع، اس کے اندر پڑھی جانے والے تسبیحات، اس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کم سے کم درجہ وہ 3 دفعہ کا ہے، لیکن جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں زیادہ فائدہ چاہتے ہیں تو دین کے معاملات میں بھی، آخرت کے معاملات میں بھی ہمیں زیادہ فائدے کی طرف جانا چاہیے. اس لیے میں نے آپ سے یہی بات عرض کی تھی کہ بھائی سارے ساتھی کم از کم 5 دفعہ پڑھنے کا اہتمام کریں. 5 دفعہ پڑھیں، اور اس میں انداز بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انداز نہ ہو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، بلکہ اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے. رکوع کے اندر جھک کر تو اس وقت الفاظ بھی اس طرح ہو جس طرح بندہ کسی کی تعریف کر رہا ہو. میں مثال دیتا ہوں، آپ کی بیوی ہے، اچھا کھانا پکا کے لاتی ہے، اچھی چیز بنا کے لاتی ہے، آپ اس کے سامنے اس طرح شروع ہو جائے، وہ کیا یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ وہ کہ آپ کہیں میں تیری تعریف کر رہا ہوں. تو بھائی تعریف اس طرح کر جو تیری بیوی کو سمجھ آئے. یعنی مطلب یہ ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے کم از کم اس کو سمجھ آئے کہ تعریف کرنے والا کیسے تعریف کر رہا ہے. پھر اس کے بعد تعریف کرنے والے کا جو انداز ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں نا، اس میں ہمارا انداز طنزیہ ہوتا ہے، طنزیہ انداز میں بندہ تعریف کر دیتا ہے. بعض دفعہ ویسے ہوائی پھیر بندہ کر دیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے 2-4 جملے کہہ دیے. یہ تعریف نہیں ہوتی، یہ فارمیلٹی ہوتی ہے. نام بناتے ہیں بھیا میں بھی واسطے چند جملے آپ دیتے ہیں. یہ تعریف وہ ہوتی ہے جو آپ بڑے یعنی سلیقے کے ساتھ، بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ، آپ پیار کے ساتھ اس کی تعریف کریں. بھائی اس نے آج کھانا اتنا اچھا بنایا، مزہ آ گیا، آج تو نے بھائی بڑی اچھی چیز پکائی ہے، بھائی یار فلاں کام تو نے بڑا اچھا کیا ہے یار. یہ اس طریقے سے. تو بھائی جس طرح مخلوق خدا کی تعریف کرتے ہوئے انسان کو اچھا انداز اپنانا چاہیے، اسی طرح رب العالمین جو کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے بھی ہمیں اچھا انداز اپنانا چاہیے. اس کے لیے یہ نہیں نہیں بھائی اللہ کی تعریف اور اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہو تو بڑے سکون کے ساتھ سبحان ربی العظیم اور رکو، پھر کہو اللہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. یہ 5 دفعہ کہو کم از کم. لیمٹ کم از کم 3 دفعہ کی ہے، لیکن وہ آخری درجہ ہے. 5 دفعہ اور 7 دفعہ کرنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا سمع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے، یہ کہیں تو اس کے بعد ربنا لک الحمد یہ بھی جائز ہے، ربنا ولک الحمد یہ بھی جائز ہے، جو آپ کو جی چاہے. ہمارے احناف کے نزدیک ربنا لک الحمد کہنا زیادہ افضل ہے. آپ ربنا ولک الحمد کہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک جملہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تائیداً ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت فرما رہے تھے، جماعت کی نماز کرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، تو پیچھے مقتدیوں میں صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ،
جب یہ جملہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا بھائی کون بندہ تھا جس نے یہ جملے کہے؟ تو ایک صحابی عرض کرنے لگا جی یا رسول اللہ میں نے یہ جملے کہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور فرمایا کہ 30 سے زائد فرشتے بھاگ رہے تھے تیرے اعمال نام اس نیکی کو لکھنے کے لیے، 30 سے زیادہ فرشتے کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس کا عمل یہ لکھ لیں، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ امید ہے انشاءاللہ، میں نے پچھلے جو میں آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اس کا اہتمام کریں، آپ نے کیا ہوگا، آپ اس کو فاریور جب تک آپ کی زندگی ہے آپ اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جانا ہے۔ ہاں ایک جملہ میں نے پچھلے جمعے پر بھی کہا تھا کہ آپ سجدوں میں رکوع سے اٹھتے ہوئے ان موقعوں پر دعا کر سکتے ہیں، دعا تو ساتھ بعد میں پھر جمعے کے بعد ساتھیوں نے مجھے کہا کہ جناب ہم اپنی پنجابی، سرائکی، اردو، پشتو، فارسی، انگلش کسی لینگویج کسی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ چلو اس بات کی انشاءاللہ اگلے جمعے وضاحت کر دوں گا۔ بھائی یاد رکھیں مسئلہ سمجھے ذرا، نماز کے اندر آپ عربی زبان کے علاوہ کسی اس میں دعا نہیں کر سکتے، نماز کے اندر عربی کے علاوہ آپ دعا نہیں کر سکتے، بس عربی ہی میں ہی آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ کو اگر ذوق اور شوق ہے کہ نماز کے اندر میں دعا کروں تو چند دعائیں آپ علماء سے سیکھ لیں، یاد کر لیں، تاکہ آپ سجدے میں یا سجدوں کے درمیان میں یا قیام رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ نماز کے تحیات کے آخر پر تاکہ وہ دعائیں پڑھ سکیں، آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیں۔ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہاں تو اس کے بعد کیا ہے جی، آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں بھی ایسے ہی 5 دفعہ کم از کم آپ پڑھیں سبحان ربی الاعلی، وہی بات ہے جلد بازی نہیں کرنی، سکون سے سجدہ کرو۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ ان یکون ساجدا للہ، جس وقت بندہ سجدے میں ہوتا ہے اس وقت اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اور یہ سجدہ ہے اللہ کا حق، ذہن میں رکھیں سجدہ ہے اللہ کا حق، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم عجم کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بادشاہوں کا سجدہ کرتے ہیں، پھر بادشاہ کی عدالت میں پہنچتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو انت حق ان یسجد لک، آپ سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو میری امت والو، اگر میری امت کے اندر غیر اللہ کا سجدہ کرنے کی، رب کے علاوہ، غیر اللہ کا مطلب ہے رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سجدے کی اجازت ہوتی تو پھر میں بیوی کو حکم دیتا وہ خاوند کا سجدہ کرے، لیکن سنو میری شریعت کے اندر رب کے علاوہ کسی اور کا سجدہ ناجائز ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر سجدہ عبادت کا ہے تو حرام ہے، سجدہ تعظیم کا ہے تب بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، سجدہ چونکہ رب کا حق ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، تو اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے اللہ کی ثنا، اللہ کی پاکی کریں، بیان کریں، اور سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، بڑے سکون اور وقار اور متانت کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کریں۔ امید ہے یہ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، آپ انشاءاللہ اس پہ عمل کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہم سنتے اس لیے ہیں کہ یار چلو عمل کریں گے تاکہ ہمارا فائدہ آخرت کا ہو جائے، اس لیے سنتے ہیں نا جی ہم۔ اچھا اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، اب التحیات 2 سجدے ہو، ہاں پہلا سجدہ کیا، اس کے بعد آپ بیٹھے، درمیان سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر اب ہمارا معمول کیا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، توجہ سے سنیں، ہمارا معمول کیا ہے؟ ہم 2 سجدوں کے درمیان خاموشی سے بیٹھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کچھ پڑھتے ہوں گے، کچھ بھی نہیں پڑھتے، پوچھ لینا علماء سے، اگر میں غلط بات کروں میں جرمانے کا حقدار ہوں، پوچھ لینا علماء سے۔ ہم یہ 2 سجدوں کے درمیان جو خاموشی سے بیٹھتے ہیں، خاموش نہیں بیٹھنا،
यहां पर दो किस्म की दुआएं अहादीस में मनकूल हैं। एक दुआ बताता हूं बड़ी सौखी है, दूसरी दुआ थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी, दोनों बता देता हूं, अल्लाह करे आपको याद रहे। लेकिन कोई जबान भी, तवज्जो से सुनो, कोई भी शख्स दो सजदों के दरमियान खामोश ना बैठे, चाहे वो अकेला है चाहे वो इमाम के पीछे है, अकेला खामोश ना बैठे दो सजदों के दरमियान। इब्ने माजा की हदीस है जिसका मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सजदों के दरमियान दुआ पढ़ते थे। कौन सी? रब्बिगफिरली, रब्बिगफिरली। बस दो दफा एक जुमला दोहराते थे, रब्बिगफिरली, रब्बिगफिरली। ऐ रब, ऐ मेरे रब मुझे माफ फरमा, ऐ मेरे रब मुझे माफ फरमा। औखे लफ्ज है, मुश्किल है, बड़े सौखे, हर बंदे को याद हो गया, आसान से लफ्ज है, रब्बिगफिरली, रब्बिगफिरली। दो दफा कहो फिर अगले सजदे पे जाओ। एक ये दुआ है, दूसरी हदीस में दुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो सजदों के दरमियान दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। थोड़ी सी लंबी है, आती होगी तो बड़ी सुन्नत पे अमल हो जाएगा। अगर ये नहीं आती तो पहले वाली दुआ पढ़ लो, रब्बिगफिरली, रब्बिगफिरली पढ़ोगे इंशाअल्लाह, लाजिम कर लो, लाजिम कर लो। ये मसनून अमाल है, मुस्तहब अमाल है, इन पे अमल करो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह पाक सुरखरू फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो दूसरी दुआ में दोबारा पढ़ देता हूँ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी। ठीक है, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये दुआ मुख्तलिफ अहादीस में आई है, किसी में वहदिनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी के अल्फाज भी आए हैं। बहरहाल ये दुआ आप अहादीस में देख सकते हैं, उलमा से पूछ सकते हैं, मैंने आपको अर्ज कर दी है, आप इसका एहतमाम करें। नहीं तो हल्की छोटे वाली जो दुआ है रब्बिगफिरली, रब्बिगफिरली, उसका लाज़मी एहतमाम करें। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा सजदा ऐसे ही करें, सजदे से उठकर अब आप बैठे हैं अत्तहियात के अंदर, इसको कहते हैं तशहुद। तशहुद के अंदर आप जो है बैठे हैं और इसमें मसला सुन ले, आखिरी अत्तहियात के अंदर बैठना वाजिब है और तशहुद अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना भी लाजिम है। दोनों चीजें लाजमी हैं, अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना भी लाजिम है और बैठना भी लाजिम है। ठीक है ना जी। अब तवज्जो से सुने, अब आखिरी अत्तहियात में हम क्या पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ सिखलाई है। ये दुआ नमाज का मानी है, दुआ नमाज का मानी दुआ है। इसमें तमाम अज़कार और औरात जितने भी विर्द और वज़ाइफ है, ये तमाम दुआओं पर तकरीबन मबनी है। अब देखो जरा, बंदा दुआ कर रहा है, क्या कह रहा है, अत्तहियातु लिल्लाह, ए मेरे रब मेरी जबान वाली इबादत तेरे लिए है। जबान से जो इबादतें अदा होती हैं उसका हकदार तू है, ये इबादत मेरी तेरे लिए है। वस्सलावात, अल्लाह जिस्मानी और फिजिकल इबादत का हकदार भी तू है। जिस्म से जो इबादत अदा होती है, जबान से जो इबादत अदा होती है, अल्लाह इन दोनों इबादतों का हकदार तू है। फिर कहता है वस्सलावात वत्तय्यिबात, अल्लाह मेरी माल वाली इबादत का हकदार भी तू है। जबान से जो इबादत करूंगा उसका हकदार तू है। तेरे इनाम पुकारूंगा, तेरे ही रास्ते पर तुझे ही दुआइयां दूंगा, तुझसे ही दुआएं मांगूंगा, मुश्किल वक्त में तुझे पुकारूंगा। जैसा कि अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुश्किल औकात में तुझे पुकार के दिखा दिया है। तूने कुरान में उनका बयान करके हमें सुना दिया है कि मुश्किल वक्त में ज़बानी इबादत है अल्लाह को पुकारना। तो इस वक्त बंदा कहे अल्लाह अत्तहियातु लिल्लाह, ज़बानी इबादत का हकदार तू है, और अगर ज़बान की पुकार है उसका हकदार भी तू है, और ज़बान से शुक्र अदा करना है तो उसका हकदार भी तू है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। नमाज में कहता है रब्बना लकल
लकल हम्द। खाना खाने के बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी व सकानी व जालनी मिनल मुस्लिमीन। या जमा का सीगा बोल के कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जालना मिनल मुस्लिमीन। ये सारी तारीफें और शुक्रानों के जुमले अल्लाह के लिए हैं। तो बंदा कहता है अत्तहियातु लिल्लाह, अल्लाह मैं अपनी जबान वाली इबादत का हकदार तुझे समझता हूँ, इसलिए ये मेरी इबादत कबूल फरमा ले। उसके बाद बंदा कहता है वस्सलावात, अल्लाह मेरी जिस्मानी इबादतें जितने भी हैं वो सारी की सारी तेरे लिए हैं। क़ियाम जिस्मानी इबादत है, रुकू जिस्मानी इबादत है, सजदा जिस्मानी इबादत है, तशहुद जिस्मानी इबादत है, सफा मरवा की साई करना जिस्मानी इबादत है, बैतुल्लाह का तवाफ करना जिस्मानी इबादत है, बैतुल मिना जाना, अपना मक्का से मिना जाना हज के मौके पर जिस्मानी इबादत है, मिना से अरफा जाना जिस्मानी इबादत है, अरफा से दोबारा मुज़दलिफा आना जिस्मानी इबादत है, मुज़दलिफा से बाद में मिना आना, वहां पे कंकरियां मारना, ये सारे के सारी जिस्मानी इबादत। अल्लाह इनका हकदार तू है। एतिकाफ बैठता हूँ ये भी जिस्मानी इबादत है। किसी कब्र पर किसी झंडी पर एतिकाफ जायज नहीं है। अल्लाह ये जिस्मानी इबादत है, इसका हकदार तू है। और मेरी एतिकाफ वाली इबादत मस्जिद में होगी, तेरे घर में होगी। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु, आगे वत्तय्यिबात, अल्लाह मेरी माल वाली इबादत का हकदार भी कौन है? बोलो बोलो, माल वाली इबादत का हकदार कौन? एक अल्लाह की जात है। माल वाली इबादत नजराना देना हो, नजर देनी हो, न्याज देनी हो, मन्नत माननी हो, चढ़ावा चढ़ाना हो, सबीलें लगानी हो, खैरात करनी हो, नफली सदके करने हो, वाजबी सदके करने हो, कुर्बानियाँ करनी हो, फितराने देने हो, उशर देने हो, जो भी चीजें अल्लाह, जो भी माल वाली इबादतें हैं, तमाम की तमाम इबादतों का हकदार, तमाम की तमाम माली बातों का हकदार अल्लाह तू है। बंदा नमाज को ही समझ लेना तो पक्का मुवाहिद बन जाएगा। पर कमाल है उन लोगों का जो नमाज पढ़ते हैं फिर भी कब्रें पूजते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं पर गैरुल्लाह के सामने झुकते हैं। ये क्यों होता है? इसलिए कि नमाज के माने का ही पता नहीं है, नमाज के मफहूम का ही पता नहीं है, नमाज के मकसद का ही पता नहीं है। इसलिए इंसान नमाज भी पढ़ता है, शिर्क भी कर लेता है। तवज्जो से सुनो, ताकि हम शिर्क से बचकर पक्के मुवाहिद बन जाएं, अल्लाह वाले बन जाएं। और यही अल्लाह पाक की मंशा है कि हर बंदा मेरा बन जाए, हर बंदा मेरे साथ ताल्लुक बना ले। अल्लाह के नबी भी इसीलिए आए, हर बंदे का ताल्लुक अल्लाह से बन जाए। नबियों ने अल्लाह की किताबें पढ़ के सुनाई है, अपनी दावत दी है, अपनी सुन्नत उम्मत के सामने रखी है और लोगों को समझाने की कोशिश की है। और लोगों तुम सब के सब अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह से ही सब कुछ होने का यकीन बना लो। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं? अच्छा, बस सलावात व तय्यिबात। आगे बंदा कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, अस्सलामु अलैका, सलाम हो, खास सलाम हो, अलिफ लाम रब्बिल लाम, अस्सलामु अलैका, खास सलाम हो अलैका, आप पर, अय्युहन नबियो, ए अल्लाह के पाक पैगंबर, आप पर खास अल्लाह का सलाम हो, व रहमतुल्लाह, अल्लाह की खास रहमत हो, व बरकातुहू, अल्लाह की खास बरकतें हो आप पर, ए अल्लाह के नबी जी। ये माना है ना,
अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, आप पर अल्लाह के सलाम भी हो, रहमतें भी हो, बरकतें भी हो। कुछ लोगों ने कहा, तो जो कहना जरा, कुछ लोगों ने कहा इसका मतलब ये हुआ अल्लाह के नबी हर जगह पर हाजिर नाजिर हैं, हर किसी का कलाम सुनते हैं, तभी तो बंदा नमाज में कहता है अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, आप पर अल्लाह का सलाम हो। सलाम बंदा उसे तो करेंगे जरा सुनता पे होता है ना। ये दलील देकर लोगों ने क्या बात कर ली है, इसका मतलब ये हुआ अल्लाह के नबी हर जगह हाजिर नाजिर हैं, हर किसी की बात को सुनते हैं। सुनो लोगों, पहले दावा सुनो हम मुवाहिदों का, सुनो लोगों, हर जगह पर हाजिर होना यानी मौजूद होना, हर किसी को हर वक्त देखना, हर किसी का कलाम सुनना, ये मखलूक की सिफत नहीं है, ये अल्लाह का खासा है। ऐसे ही है ना। सवाल ये पैदा होता है जब अल्लाह के नबी हाजिर नाजिर नहीं है, हर वक्त हर किसी का कलाम नहीं सुन सकते, तो फिर सलाम क्यों पढ़ते हो नमाज में? ये एतराज आता है, सवाल आता है भाई जेले सलाम सुन दे नहीं पढ़ा तब सलाम कर दे क्यों वो? सवाल है। एक एतबार से देखा जाए ना तो बंदा थोड़ा सा तशवीश में पड़ जाता है, यार गल तो ठीक है, सलाम बंदा सुने नहीं तो बंदा सलाम पढ़े क्यों? तवज्जो से इसी नमाज में हम इसी जगह पर अगला जुमला क्या पढ़ते हैं, तवज्जो से सुनो, अगला जुमला पढ़ेंगे ना इस मसले का जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैना, ठीक है, अस्सलामु खास सलाम हो अलैना, हम सब पर। ये नमाजी बैठे ना जमात ना नमाज पढ़ते पे वो क्या दे पे अस्सलामु अलैना, अल्लाह हम सब पर तेरा खास सलाम हो। यही माना है ना। और सीधी सीधी गल दस्यो, इमाम जिस वक्त पढ़दा पे आंदा अस्सलामु अलैना, तुसा उसदा ए सलाम सुनदे पे आंदे हो, हैं? नो सुनदे पे आंदे। लोग तो कहते हैं सलाम उस वक्त किया जाता है जब सुनने वाला मौजूद हो, आप नहीं सुन रहे होते, पक्की बात है। अच्छा चल यार, इमाम तो दूर बैठा होता है, पड़ोस वाला आपका बिल्कुल साथ बैठा हुआ नमाजी, वो भी ये जुमले पढ़ रहा है अस्सलामु अलैना, उसका सुन रहे होते हो? नहीं सुन रहे होते हो। फिर ये क्यों पढ़ते हो? जब सुन नहीं रहे फिर पढ़ते क्यों हो? आपको पता है मैं अस्सलामु अलैना कह रहा हूं, हम सब पर सलाम हो, तो ये नहीं सुन रहे तो फिर कहता क्यों है? एक अगला एक और बात सुनो, फिर इसका जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। नमाज मुकम्मल करने लगा है, दरूद पढ़ लिए, दुआएं पढ़ ली हैं, अब सलाम फेरने लगा है, उस वक्त क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम, बोलो यार बोलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम जमा का सीगा है, तुम पर अल्लाह का सलाम और रहमत हो, ये माना ना, ठीक है। इस वक्त जब बंदा सलाम पे रहा होता है क्या नियत करता है? फरिश्ता उसके बाद इस साइड वाले जितने नमाजी हैं, सज्जे पास वाले जितने नमाजी हैं, इन सारा दी नियत बंदा कर दे, खब्बे पासे सलाम फिर दे, उस वक्त भी इन सारे दी नियत कर दे। ईमानदारी से बताओ, इधर कारी साहब हाफिज साहब नमाज पढ़ रहे हैं, उधर हाजी साहब पढ़ रहे हैं, उन्ना क्या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तुसा क्या सलाम, एक दूजे दा सलाम सुनिया ने? सुनिया ने? नहीं सुना, फिर पढ़ते क्यों? जब पता है नमाज में कहता अस्सलामु अलैना, वो साथ वाला नहीं सुन रहा, क्यों पढ़ते हो? और सुनो, सलाम फेरते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हो, पता है मैं दिल में कह रहा हूं, साथ वाला नहीं सुन रहा, उसको सलाम करते क्यों?
اس کا جواب یہ ہے، بتاؤں جواب؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ جو سلام ہے یہ سلامتی کی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے، اور بندہ دعا اللہ سے کرتا ہے، کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ بندہ جیسے کہتا ہے اللہ میرے پتر نو صحت دے دے، اللہ میرے بچی نو صحت دے دے، اللہ میرا فلاں بندے کو مسئلہ حل کر دے پریشان حال کا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ سن رہا ہے نا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ یہ سلام بھی دعا ہوتا ہے اور سلام دعا ہے۔ دعا سننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم نماز میں کہتے ہیں، اب انشاءاللہ جواب سمجھ آ گیا ہوگا، جب ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کی سلامتیاں ہوں، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ یہ دعا ہے، یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ نماز ساری کی ساری دعا ہے۔ نماز میں نے شروع میں کہا ہے نماز کے اکثر وظائف دعا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے یاد رکھیں سلام کے لیے سننا ضروری نہیں ہوتا۔ جب آپ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں تو یہ بھی آپ اپنے لیے اور ساتھ والوں کے لیے رب کے حضور سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ سلام پھیر رہے ہوتے ہیں نماز کا، اس وقت بھی آپ سلامتی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھو جب بندہ قبرستان میں جاتا ہے تو قبر والوں کو، اموات اور موتا کو، قبر والوں کو بندہ سلام کرتا ہے، جو حدیث سے ثابت ہے السلام علیکم اہل دیار المؤمنین انتم لنا صرفنا وانا انشاءاللہ بكم للاحقون ونحن بالعصر، یا مختصر دوسرا ہے السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ ساری کے سارے سلام دعائیں ہیں، اور دعا بندہ قبرستان میں جا کے کرتا ہے۔ اے قبر والے ہو تواڈے تے اللہ دا سلام ہوئے، اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو محفوظ رکھے، ہوتی دعا ہے۔ اور دعا سننے والا ہمارا عقیدہ ہے، دعا سننے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی دعا ہے۔ تو گل سمجھ آئیے، اللہ کرے میں صحیح سمجھا سکتا ہوں۔ آگے جی، السلام علینا، سلام ہو اللہ کا ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام صالحین نیک لوگوں پر، اور تمام صالحین پر بھی سلامتی کی دعا کر رہا ہے، تو یہ دعا ہو۔ اچھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب آ گیا شہادتین کا نمبر، دو شہادتیں دینی ہیں یہاں بیٹھ کر، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ گواہی دے رہا ہے، اشہد، میں اس بات کا نعرہ مار کے اعلان کر رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو میرا جملہ یاد ہو، موقع کی مناسبت سے الہ کا معنی تبدیل ہوگا۔ ایسا اکثر میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، موقع کی مناسبت سے الہ کا معنی تبدیل ہوگا۔ الہ کا ظاہری معنی ہے معبود، عبادت کے لائق، عبادت کی مختلف قسمیں ہیں۔ اب سننا ذرا، بندہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، او لوگوں سنو، نماز عبادت ہے، اور اس عبادت کا حقدار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اشہد اللہ الہ، اس عبادت کا الہ، معبود عبادت کے لائق، اس عبادت کا حقدار رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور نمبر دو، میں گواہی دیتا ہوں، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ یہ معنی تھی دے کہ معنی اللہ دے بندے تے اللہ دے رسول۔ فتوہ لگایا جاتا ہے، سنو یار،
फतवा लगाया जाता है नबी को बंदा कहना कुफर है, नबी को बंदा कहना हराम है। सुनो यार, तेरी नमाज तब मुकम्मल होगी जब तू नबी को बंदा मानेगा, गवाही देगा। अगर नबी को अब्दियत से निकाल दे, तेरी नमाज कबूल ही नहीं हो सकती। ठीक है। और सुनो एक मसला, ये फतवा इस बात पर है कि अगर कोई बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बंदों में से तस्लीम न करे, किसी और मखलूक में से माने, चूंकि कुरान की वाज़े आयात और नुसूस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे होने पर, आप अल्लाह के बंदे थे, हजरत अब्दुल्ला के बेटे, हजरत आमिना के बेटे अल्लाह के बंदे थे, आपकी अब्दियत और बंदे होने पर वाज़े आयात मौजूद है। और अगर कोई बंदा अल्लाह के नबी को अब्दियत से निकाले, वो बंदा आयतों के इनकार की वजह से काफिर हो जाएगा। आप किसी आलिम से भी पूछ लीजिए, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहां पे एक मसला सुनो। जब आप ये शहादतें, दो शहादतें पढ़ रहे होते हैं नमाज के अंदर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उस वक़्त ना उंगली का उठाना, अब आप तरफ थोड़ा सा मेरी तरफ देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है फायदा ज्यादा हो जाएगा। सुनेंगे तो फायदा कम होगा, देखेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। उस वक्त उंगली का उठाना सुन्नत है, उंगली का उठाना सुन्नत अमल है। नमाज को मुज़य्यन करके, सुनन तरीके से, मसनून तरीके से मुज़य्यन करके अदा करो ताकि ज्यादा अजर का बाइस बने। ठीक है जी। अब वो उंगली उठानी कैसे है, उसमें जो है कुछ हजरात इस तरफ गए हैं कि वो उंगली को इस तरह करके ना हरकत देते रहते हैं, हरकत देते रहते हैं। और एक हदीस में अल्फाज आते हैं, ठीक है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली को हरकत दी है, लेकिन जो तहकीक शुदा बात है, मैं उनका रद्द नहीं करता, वो करते हैं करेंगे, अच्छी बात है, वो भी एक जाहिरी माना मुराद ले रहे हैं। लेकिन जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, जो असलन बात है वो ये है कि अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह कहना है, उंगली नीचे कर देनी है। और ये दरमियान वाली बड़ी उंगली और अंगूठी का सर्कल और दायरा बनाकर आपने उंगली को फिर नीचे कर देना है, उंगली को सुकून से रखना है सलाम तक। ये एक बेहतरीन और मसनून तरीका है। कर समझ आइए, ठीक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पे नीचे कर देनी है, उसके बाद ये दायरा बाकी रहेगा और आखिर तक आपने उंगली को ऐसे झुका के रखना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस पर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह, जरूर करेंगे, औखा काम नहीं। पढ़ रहे हैं उधर ही जो है आप इस तरह करें, इस तरह करके आप उंगली को उठाएं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और उंगली को नीचे कर लें, दायरा इस तरह बाकी रहे, ठीक है। दरमियान वाली अंगूठी है, उंगली और अंगूठा इनको मिलाकर दायरा इस तरह सर्कल रहे और उंगली फिर नीचे कर दे। ये एक बेहतरीन तरीका है, मसनून तरीका है, इस पर जरूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ना। अच्छा, उसके बाद अब्दुहु व रसूलुहु तक आप पहुंच गए। अब आगे जहां पर जो वजूबी काम थे, लाजमी काम थे, ये सारे मुकम्मल हो गए नमाज के। अब उसके बाद मसनून आमाल है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है, नमाज को मुज़य्यन करके सुन्नतों के साथ अदा करो, ठीक है जी। तो अब उसके बाद जो है, जो मसनून अमल वो दो हैं। एक अमल है दरूद पाक का पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़े, सुन्नत है यहाँ पे पढ़ना, और दरूद भी वो पढ़े जो आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, और वो है दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, ये दुआ, ये दरूद पाक पढ़ें। उसके बाद आपके पास जो वक़्त है, उस वक़्त के मुताबिक आप कुरान और सुन्नत से जो दुआएं कुरान और सुन्नत से आपने मांगनी है वो आप दुआएं करें। हमने तो रट्टा लगाया हुआ ना, जो बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि रब्बी जालनी और रब्बना फिरली, बस पूरी जिंदगी गुजर गई यही दुआ पढ़ते हुए और बगैर समझे पढ़ते हुए।
चलो बंदा समझ के पढ़े, अच्छी बात है, एक दुआ कुरान की है, इससे इनकार नहीं है, पढ़नी चाहिए, लेकिन एक ही दुआ पर इक्तिफा करना ये बेहतर नहीं है। आप और दुआएं भी यहाँ पे पढ़ें। मैंने पहले भी ये मसला यहाँ बयान किया है, आप और दुआएं यहाँ पे मांगे। कभी आप पढ़ ले रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये बड़ी दुआ है, बहुत बड़ी दुआ है। जब बंदा ये पढ़ता है उसमें दुनिया की खैरें भी मांगता है, आखिरत की खैरें भी मांगता है, जहन्नम के अजाब से पनाह भी मांग रहा है। इसलिए इस दुआ का लाजमी एहतमाम करें। कभी आप ये दुआ पढ़ लिया करें, कभी आप रब्बी जालनी और रब्बना फिरली वाली दुआ पढ़ लिया करें, कभी आप रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना ये दुआ पढ़ लिया करें, कभी रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना पढ़ लिया करें, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो और दुआएं हदीस में आती हैं वो पढ़ लिया करें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह मैं कौन सी दुआ मांगू इस मौके पर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ सिखलाई है, मैं आपको सुना देता हूँ, अल्लाह करे याद आती हो आपको, नहीं तो याद कर लें, आजकल नेट का जमाना है, कोई मसला ही नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। ये जुमले हमारी रिकॉर्डिंग में आ जाते हैं, हमारे ग्रुप में भी आ जाते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो आ जाती है, उधर से भी आप सुन लेते हैं, सुन सकते हैं, बाद में आप नेट से भी तलाश कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को सिखाई है कि ये दुआ मांगा। उसके बाद एक और दुआ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह अज़ाब कब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम, ऐ अल्लाह अज़ाब जहन्नम से तेरी पनाह मांगता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, ऐ अल्लाह जिंदगी और मौत के तमाम फितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, ऐ अल्लाह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। कितनी बड़ी दुआ है। इसके आखिर में फिर एक और दुआ भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम, ऐ अल्लाह तमाम गुनाहों से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ और कर्ज से भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि मुझे कर्ज से भी बचा। ये दुआएं हैं, आप मांगे अल्लाह से, मांगने का टाइम है। लेकिन पिछले जुमे मैंने कहा था नमाज के अंदर दुआएं मांगे, लोगों को तशवीश हुई थी भाई अपनी जबान में मांग सकते हैं या नहीं। भाई आप नहीं मांग सकते, सिवाय अरबी के आप दुआएं नहीं मांग सकते। आप इसका एहतमाम अगर करना चाहते हैं तो आप खुदारा दुआएं याद कर लो, आपने मस्जिद के कारी साहब से, मौलाना साहब से, आलिम साहब से, जो भी, या आप कहीं से भी वो दुआएं मंगवा लो, किताबों से याद कर लो और उसको उनको याद करो और उनका ये आपका ये ज़ौक़ पूरा करो, ठीक है ना जी। उसके बाद दुआएं पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये जो है सलाम पढ़ना है। सलाम पढ़ते हुए सबसे पहले दाएं फरिश्ते की नियत करनी है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर उसके बाद इधर आपके साथ जो नमाज में नमाजी हैं जमात में, उनकी नियत करें, ठीक है। और जो है उसके बाएं तरफ भी इसी तरह बाएं फरिश्ते की और बाएं वाले साइड वाले नमाजियों की नियत करें। ये मुकम्मल हो गई नमाज। नमाज का सलाम फेरने के बाद आप चंद बातें जरा तवज्जो से सुने, ये है तो सुर के बगैर लेकिन सुननी जरूर है, तवज्जो से सुननी है। नमाज का सलाम फेरने के बाद फौरन मसनून तरीका क्या है, सुन्नत तरीका क्या है, खुदारा तवज्जो करना। हमारे यहाँ कई लोग जो है सलाम फेरते ही ला इलाहा इल्लल्लाह के वजीफा और विर्द शुरू कर देते हैं, कर देना कई लोग। कई लोग क्या पढ़ते हैं, कई लोग क्या पढ़ते हैं, पूछ लो उलमा से। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत अमल, मसनून अमल क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते थे उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा कहते थे अल्लाहु अकबर और 3 दफा कहते थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सौखा काम है, ये काम करो जो सुन्नत से साबित है। इसका मंशा मुझे जो समझ में आती है, इस अल्फाज की मंशा ये है कि बंदा जब सलाम फेरे ना तो बंदा कहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई है कि बंदा कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू बहु वदाए, तेरी इबादत दा हक मैं नहीं अदा कर सकिया, तू बहु वद है, तू बहुत बड़ा है। और उसके बाद फिर बंदा कहे अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर, मैं हक अदा नहीं कर सका, मुझे माफ कर, मुझे माफ। ये एक सुन्नत तरीका है। हम समझते हैं नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह ऊंची आवाज से पढ़ो, जो नमाज से रह गया उनकी नमाज भी खराब होती रहे और ये बिदअत भी जारी होती ना। भाई याद रखें, मसनून जिंदगी गुजारोगे, मसनून तरीके से अमाल करोगे, इंशाअल्लाह बरकत भी आएगी, अल्लाह भी राजी होगा।
ठीक है ना जी। उसके बाद फर्जों का सलाम फेरा, अल्लाहु अकबर एक दफा और 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये आहिस्ता दिल में पढ़ना है। उसके बाद जो अपना जो टाइम है, ये वक्त सहाबी रसूल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त कौन सा है? तवज्जो से सुनो जरा, ये थोड़ा सा पेचीदा बात है लेकिन मैंने करनी जरूर है। या रसूल अल्लाह, दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त कौन सा है? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी पहर में, तहज्जुद के वक्त, रात के आखिरी पहर में दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और फर्ज नमाज के बाद, बाद सलातिल मकतूबा, फर्ज नमाज के सलाम फेरने के बाद दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं दिखा सकता हूं, मेरे मोबाइल में मौजूद है। फरमाया कि नमाज का सलाम फेरने के बाद, फर्ज नमाज के बाद और तहज्जुद के टाइम, रात के आखिरी पहर में, ये 2 औकात दुआ की कबूलियत के हैं। इन औकात में दुआ करना ये बहुत भले की बात है, और दुआ न करना, इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर फर्ज नमाज के बाद न करने वाले, दुआ न करने वाले पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई है कि जो बंदा नमाज पढ़ने के बाद दुआ ना मांगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसनु अगर मेरी लोड़ नहीं तो मैनू इसकी लोड़ नहीं, दफा हो जाए। हाँ, कबूलियत का वक्त है, इसलिए इसमें दुआ का एहतमाम करोगे। भला कैसे करोगे? अब ये बात भी समझनी है, करोगे कैसे? हम क्या करते हैं, हमारा अमल क्या है, आप साथियों का अमल क्या है? अब इस पर मैं जरा पहले बताऊंगा, फिर असल तरीका बता दूंगा। हमारा अमल ये है कि हम सलाम फेरते हैं, सलाम फेरने के बाद मौलवी साहब की तरफ हमारी नजर होती है, मौलवी साहब हाथ उठाता है, मौलवी साहब दुआ करता है, हम बैठे होते हैं हाथ उठा के। उसके बाद मौलवी साहब कहते हैं आमीन, हम भी कहते हैं आमीन। और अल्लाह के बंदो, मौलवी साहब ने दुआ मांगी, आप दुआ से महरूम रह गए, आप दुआ से महरूम रह गए, आपने तो मांगी कोई नहीं है। अगर आप यहां पे यूं कहेंगे कि मौलवी साहब के जो पीछे थे, मौलवी साहब ने मांगी तो हमने भी मांग ली, ना भाई ना। नमाज इमाम के साथ आपने जब शुरू की, उस वक्त से लेकर सलाम तक आप इमाम के ताबे थे। जब सलाम फिरा, इमाम फ्री, आप भी फ्री। इमाम अलहदा हो गया, आप अलहदा हो गए। अब आपने अपने अमल करने हैं, इमाम ने अपने अमल करने हैं। अब किस बात में इमाम के इंतजार में बैठे हो? दुआ की कबूलियत का वक्त है, इस वक्त को हम इसी बात की नजर कर देते हैं, चांस जाय कर देते हैं। हर नमाज पे हमारा यही मामूल होता है, मौलवी साहब ने हाथ उठाया, हमने भी उठा लिया, मौलवी ने हाथ बंद किया, हमने भी बंद कर लिया। भाई खुदारा, इतनी बड़ी नेमत से महरूम हो रहे हो। और फिर थोड़ी सी समझने वाली बात है, मौलवी साहब है, उसकी अभी शादी होनी है, वो अल्लाह से कह रहा है, या अल्लाह मुझे नेक साले बीवी अता फरमा, मुझे नेक साले बीवी अता फरमा। आगे सफेद रीश बाबा पीछे बैठा है 70 साल का, वो कह रहा है आमीन आमीन आमीन। तो खुदा दे बंदे, तू तो मौलवी का भला मंगता पे, आपने तो मंगी कुछ है नहीं। बस तुम्हें जो चाहिए वो मांगो ना अल्लाह से, अपना वक्त जाय कर रहे हो। तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया है, जो तेरी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, मुतालबा है, अल्लाह के सामने रखो। मेरे नबी ने फरमाया दुआ की कबूलियत का वक्त है। सीधी गल सुन यार, करें आना कोई पता ही नहीं है, वक्त जाय हो रहा है। मौलवी साहब ने हाथ उठाया, हमने भी उठा लिया, बड़ी बात हुई ना, तो मौलवी साहब ने ऊंची दुआ की अरबी में, तो हमने भी कहा आमीन आमीन। ओ भाई, ओ मौलवी अपने वास्ते मंगदा बैठा है, उसनु पुत्र चाहिए, कौन किसे चाहिए? मौलवी साहब बूढ़ा है, उसको बीवी अब नहीं चाहिए, जवान बैठा है, उसको अब बीवी चाहिए। मौलवी साहब कहते हैं अल्लाह खात्मा चंगा करे, याद है आमीन। और भाई पहले पर नहीं होता, सही बात है, खात्मा। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? है ये क्या है यार, बस रस्मी निजाम चल रहा है, देखा देखी चल रही है। आप समझदार साथी हो, अपना वक्त ज़ाया न करो, ये कबूलियत का वक्त है, अल्लाह से दुआ मांगो। हाँ, इस दुआ मांगने के वक्त में मौलवी साहब अपनी मांग रहा है, आप अपनी मांग रहे हैं, इस वक्त में आपके और मौलवी साहब के हाथ इकट्ठे उठे हुए हैं, कोई मना नहीं है,
کوئی منع نہیں ہے، لیکن مولوی صاحب کے انتظار میں مولوی کو دیکھتے رہنا، ہاتھ ادھر ہے نظر مولوی پہ ہے، مولوی ایسے کرے گا آپ بھی ایسا کریں گے، خدا کے بندے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس میں آپ پڑھ کے بہت بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے یہاں تک علم ہے اس مسجد میں مولوی صاحب اپنی دعا مانگتے ہیں، آپ اپنی مانگتے ہیں، انجار ہوں گے؟ ہاں الحمدللہ۔ اور آپ کو ایک اور مسئلہ بھی بتاؤں، جب بھی میں جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں اپنی دعا مانگتا ہوں، آپ اپنی مانگا کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر کہ پیچھے سے کوئی ساتھی کہہ دے، اور یہ سنت عمل ہے، یہ اب سنت ہے، پیچھے سے کوئی بندہ کہہ دے جی فلاں چیز کے بارش کے لیے یا فلاں مریض کے لیے یا فلاں مسئلے کے لیے مولانا دعا کرا دو، اب اجتماعی دعا مانگو، اب اپنی روک دو، اب مولوی صاحب اونچی دعا کرائیں گے، اجتماعی دعا کریں گے، آپ آمین کہنا، اب سب کا ایک ہی مقصد کے لیے دعا کرنا ثابت ہو گیا نا، اب تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہر نماز میں مولوی کے پیچھے بیٹھے رہنا، اپنے مطالبے رہ گئے، مولوی کے مطالبوں پہ آپ یس یس آمین آمین کہہ رہے ہو، میرے بھائی آپ اس بہت بڑی نعمت سے معروم ہو رہے ہو۔ گل سمجھ آئیے؟ اس واسطے منگسو نا اپنی دعائیاں۔ ہاں حدیث شریف میں آتا ہے جس کو دعا مانگنے کی توفیق نصیب ہو گئی اس کو بہت بڑی خیر نصیب ہو گئی، اس کو بہت بڑی خیر نصیب ہو گئی۔ ٹائم پورا ہو گیا، چھوٹی سی دو باتیں سن لو۔ ہاں جی، پہلا سوال یہاں پہ آیا جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا کیسا ہے؟ مولا علی کہنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا کیسا ہے؟